آج ویو 360 میں افغانستان میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی نصف تعداد شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتی ہے، یونیسیف کا خدشہ۔ فیس بک غلط معلومات کے منفی استعمال سے آگاہ تھا، فیس بک کی سابق ملازم کا امریکی سینٹ کی سماعت میں دعویٰ۔ اور سمپلی امریکہ میں آپ کو سیر کروائیں گے امریکی دارالحکومت کے گریفٹی میوزیم کی۔ 14th Street Graffiti Museum was founded in 2020 as a way to honor Dan Hogue, aka Cool Disco Dan, who is the most famous graffiti writer from Washington, D.C. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ افغانستان میں شدید انسانی بحران کے نتیجے میں جو طالبان کے کنٹرول سنبھالنے کے بعد مزید شدت اختیار کر گیا ہے، اس سال کے آخر تک 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 32 لاکھ بچوں کو شدید غذائی قلت کے خطرے کا سامنا ہوگا۔ یونیسیف کے مطابق اگر اس مسئلے کا فوری حل تلاش نہیں کیا جاتا تو ان میں سے کم از کم 10 لاکھ بچوں کے مرنے کا خطرہ ہوگا۔ افغانستان میں 3 طرح کے مسائل اس انسانی بحران کی وجہ ہیں۔ ملک میں خشک سالی ہے، پانی کی کمی کے مسائل ہیں اور کووڈ کی عالمی وبا کے تباہ کن سماجی اور معاشی اثرات کے ساتھ ساتھ سردیوں کی آمد بھی ان مسائل میں اضافہ کرے گی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق افغانستان میں 95% گھرانوں کو مناسب خوراک نہیں ملتی اور بڑوں کو کم کھانا پڑتا ہے تاکہ ان کے بچے زیادہ کھا سکیں۔ اقوام متحدہ نے ستمبر میں افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد اکٹھا کرنے کے لیے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا جس میں دنیا کی طرف سے $1 ارب سے زائد امداد کے وعدے کیے گئے۔ حال ہی میں ہیومن رائٹس واچ نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ طالبان نے میڈیا پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ اس سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق انہوں نے طالبان سے اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی۔ وائس آف امریکہ کی مونشا کاظم کی بات ہوئی جان سیفٹن سے جو کہ ہیومن رائٹس واچ سے منسلک ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ وہ آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا جس بارے میں چاہے رپورٹنگ کے لیے آزاد ہے، لیکن پھر وہ اس سے ہٹ کر میڈیا کو محدود کرنے والے قوانین جاری کرتے ہیں۔ میڈیا سے کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے جو قومی شخصیات کی توہین کے زمرے میں آتی ہو، جو اسلام کے خلاف ہو یا جن سے تنازع پیدا ہو، لیکن وہ اس میں کسی بات کی وضاحت نہیں کرتے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ طالبان نے بنیادی طور پر ہدایت کا ایک مجموعہ دیا ہے جس پر عمل کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت مبہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافیوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، کچھ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ احتجاج کے دوران دوسروں کے احتجاج پر رپورٹنگ کرتے ہوئے کچھ کو مارا پیٹا گیا، لہٰذا بہت سارے صحافی قابل فہم طور پر پریشان ہیں اور وہ خود کو سینسر کر رہے ہیں۔ وہ کھل کر بات کرنے سے، رپورٹنگ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس سے مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے جنوبی ایشیا کے اس علاقے میں بہت کام کیا ہے اور انسداد دہشت گردی میں بھی آپ کا بہت کام ہے۔ آپ افغانستان کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ترجمان کے مطابق حالات بہتر ہونے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبوری حکومت ہے اور دنیا کو انتظار کرنا چاہیے۔ کیا ہیومن رائٹس واچ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے؟ Does Human Rights Watch believe that? They're certainly trying to give an image. وہ یقیناً اپنے بارے میں اچھے طرز عمل کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ غیر ملکی سفارتکاروں سے مل رہے ہیں، وہ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، وہ بین الاقوامی میڈیا کو ملک کے حصوں میں جانے کی اجازت بھی دے رہے ہیں۔ اس سے میڈیا کی آزادی کے لیے ان کے پرعزم ہونے کا ظاہری تاثر ملتا ہے، لیکن ان کے اقدامات ان کے بیان سے مختلف ہیں۔ یہ کوئی ایسی حکومت نہیں جس نے خود کو ایک قانون کی بالادستی کا احترام کرنے اور درگزر کرنے والی حکومت ثابت کیا ہو۔ اس کے برعکس یہ ایک ظالمانہ حکومت ہے جس کی شناخت بربریت اور دشمنی ہے۔ And its capriciousness. The foreign assets for Afghanistan is frozen. افغانستان کے لیے غیر ملکی اثاثے منجمد ہیں اور ملک میں انسانی بحران برپا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دنیا افغانستان میں ایک عام آدمی کے بارے میں فکر مند ہے، لیکن پالیسی ساز طالبان کی طرف سے فنڈز کے غلط استعمال پر بھی فکر مند ہیں۔ The funds being misused by Taliban. What's your take? That's a good point. The Taliban. یہ ایک اچھا نقطہ ہے۔
तालिबान चाहते हैं कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान की ज़मीनी सूरत-ए-हाल को समझे। लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं, खुराक ख़त्म हो रही है, बैंकिंग का बहरान है, एक इंसानी बहरान है, और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों को इन मसाइल पर रिपोर्टिंग की इजाज़त देने से तालिबान को मदद मिलेगी। लेकिन फिर अगर वो अपने अज़्म से हटकर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो इस इस्तदलाल को कमज़ोर कर देते हैं कि वो एक नई हुकूमत है जो कि मसाइल हल करने की कोशिश कर रही है, और वो मईशत और इंसानी सूरत हाल के इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त तो लगता है कि तालिबान अफ़गान अवाम को खुराक मुहैया करने से ज़्यादा ख़वातीन के रोज़गार को महदूद करने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और ये एक बड़ा मसला है। Do you think क्या आपको लगता है कि ख़वातीन के हुकूक के मसाइल पर कोई पेशरफ्त होगी, क्योंकि तालिबान पर सबसे ज़्यादा दबाव बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से इसी मसले पर आ रहा है? Well, this time around, 1996 और 1998 के मुकाबले में जब तालिबान पहली बार इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त अमेरिका और दीगर एहतियात देने वाले ममालिक अफ़गानिस्तान की मईशत का लाजमी हिस्सा हैं। तालिबान चाहें या ना चाहें, उन्हें अब बैनुल-अक़वामी डोनर्स की मदद की ज़रूरत है ताकि मईशत और मुल्क को तबाही से बचाया जा सके, और इस तरह डोनर्स ममालिक जैसे यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक और दीगर को ये मौका मिलता है कि वो यकीनी बनाएं कि तालिबान जो कहेंगे वो करेंगे। उम्मीद की एक छोटी सी किरण मौजूद है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि वो ख़वातीन को उनके हुकूक देने पर राज़ी हैं, लेकिन उसे देखना बाकी है। बात सिर्फ ये है कि कोई उन पर एतमाद नहीं करता। बहरहाल वो कम से कम दुरुस्त बात कह रहे हैं, ख्वाह वो ऐसा कर नहीं रहे हों। is there anything क्या ह्यूमन राइट्स वॉच और तालिबान के दरमियान किसी किस्म की ठोस बातचीत जारी है? किन तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत हो रही है? concerns that you have brought to them? well, I can't go into our private. ये प्राइवेट राब्ते हैं और मैं इनकी तफसील में नहीं जा सकता, मगर हमने तालिबान से मुलाकात की और इंसानी हुकूक के मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया है, और हम ऐसा करते रहेंगे। जब हमने इस रिपोर्ट को जारी किया तो उनकी वजारत ने इसका जवाब दिया, और उसके बाद हमने अपनी अगली रिपोर्ट शाया की। हम तवक्को करते हैं कि मज़ीद बातचीत होगी, और ना होने की कोई वजह नहीं है। लेकिन बिलाखिर ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स वॉच की वजह से तालिबान कुछ करेंगे, और इस वक्त बैनुल-अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि वो इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाए और इस बात को यकीनी बनाए कि तालिबान जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। Use the leverage they have. अफगानिस्तान की वजारत इत्तलात और सकाफत ने इन दावों की तरदीद की है जो कि HRW की तरफ से किए गए हैं, और वो ख़ास तौर पे जब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं तो इसको वो डिनाई कर रहे हैं। वजारत के सकाफती कमीशन के रुकन मौलवी नूर मोहम्मद मुतवक्किल के मुताबिक कुछ इलाकों में छोटे मोटे वाक़यात होते हैं, अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसका अजाला किया जाएगा। अमारत इस्लामिया पहले भी मीडिया की हिमायत करती थी और अब भी कर रही है। यकीनन मीडिया जो भी मवाद छापे या नशर करेगा वो इस्लामी शक्ल में और अफगानिस्तान की रवायत के मुताबिक होना चाहिए। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के दौरान मुल्क छोड़ने वाले अक्सर अफगान शहरी अमरीका के मुख्तलिफ फ़ौजी अड्डों और छावनियों में उस वक्त तक मुकीम हैं जब तक उनकी मुस्तकिल रिहाइशगाहों का कोई इंतज़ाम नहीं हो जाता। इसके बाद मुख्तलिफ रियासतों में उनकी आबादकारी शुरू की जाएगी। अमरीकी अवाम की जानिब से इन अफराद के लिए एहतियात और मदद का सिलसिला जारी है, जबकि मुख्तलिफ इमदादी तंजीमें रिहाइश और मुलाजमत ढूंढने के लिए उन्हें मुआवनत भी फ्राहम करेंगी। जब रियासत विस्कॉन्सिन के रिहायशी काइल वेंडन प्लास ने सुना कि उनके घर के करीब वाक़या फौजी छावनी फोर्ट मैककॉय में अफगान शहरियों को लाया जा रहा है तो वो फौरन मुतहर्रिक हो गए। जैसे ही मैंने ईमेल पढ़ी तो 10 मिनट के अंदर खुद को रजिस्टर कर लिया और काम के लिए तैयार हो गया। काइल टीम रूबिकॉन के लिए बतौर रजाकार काम करते हैं। ये अमरीकी छावनी फोर्ट मैककॉय में आर्जी तौर पर बसाए गए तकरीबन 13,000 अफगान मुहाजिरीन के लिए बड़ी मिकदार में आने वाले अहतियात और अशिया पहुंचाने का काम कर रही है। इन्हें बुनियादी सहूलियात की ज़रूरत है। हम इस वक्त डाइपर्स, ख़वातीन की मसनूआत, बेबी फूड और कपड़ों से भरे थैलों की छांटी करके ज़रूरतमंद अफराद तक पहुंचा रहे हैं। फोर्ट मैककॉय इन अफराद की प्रोसेसिंग का आर्जी ठिकाना है। यहाँ लाए गए तमाम अफगान अफराद में से सिर्फ 400 रियासत विस्कॉन्सिन में रहेंगे। बाकी को रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर पिट्सबर्ग समेत दीगर जगहों पर आबाद किया जाएगा। हम इन फैमिलीज को खुशामदीद करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। काबुल में अमरीकी काउंसिल खाने में काम करने के बाद 2018 में नूरुल हक फजली स्पेशल इमिग्रेंट वीजे या SIV पर अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका आ गए थे। वो जूइश फैमिली और कम्युनिटी सर्विसेज या GFCS में काम करने वाले वाहिद अफगान हैं। JFCS
पिट्सबर्ग में लाकर आबाद किए जाने वाले अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश और मुलाजमत ढूंढने में मदद फराहम करने वाली तंजीमों में से एक है। नूरुल हक ये नहीं जानते कि कब और कितने अफगान यहाँ आबाद किए जाएंगे। मसला ये है कि हमें बहुत कम वक्त दिया जाता है। जैसे गुज़िश्ता हफ्ते सिर्फ 5 घंटे का नोटिस दिया गया कि एक अफगान फैमिली आ रही है, तो आपको इससे डील करना पड़ता है। अक्सर ऐसी तैयारियों के लिए 1 माह तक का वक्त हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ 5 घंटे। Because this is a crisis situation, this is very different than the way things are typically handled. JCFS के सदर जॉर्डन गोलन कहते हैं कि तेज और अफरा तफरी के आलम में होने वाले अफगानिस्तान से मुहाजिरीन के फौरन इनखला के बावजूद अमरीका को उनकी वजह से मुमकिना सिक्योरिटी खतरात के अंदेशे महज मुबालगा आराई हैं। Special immigrant visa holders, the SIVs, they're pretty similar to स्पेशल इमिग्रेशन वीजे पर आने वाले अफराद काफी हद तक महाजरीन जैसे हैं। ये महाजरीन की एक खास कैटेगरी में हैं, जिन्हें इस मुल्क में छानबीन के सबसे सख्त सिलसिले से गुजरना पड़ता है। उन्हें यहाँ आने के लिए वजारत खारजा की क्लियरेंस दरकार होती है, लेकिन इससे पहले भी उन्हें हेल्थ सिक्योरिटी और बैकग्राउंड चेक जैसे स्क्रीनिंग के बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है। ये बहुत तवील अमल है, तो जब वो यहाँ आते हैं तो सियाहत, स्टूडेंट या दीगर वीज़ों पर आने वालों की निस्बत हम उनके बारे में कहीं ज्यादा मालूमात रखते हैं। हमारी हुकूमत यहाँ मौजूद अफगान मेहमानों की छानबीन कर चुकी है। उन्होंने बैरून मुल्क हमारे साथ काम किया और बहुत कुर्बानियाँ दी। ऐसी कुर्बानियां कायल बहुत अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वो टीम रूबिकॉन में रजाकार होने के अलावा अमरीकी फौज से भी मुंसलिक रह चुके हैं। वो सन 2009 और 10 में जनूबी अफगानिस्तान में तालिबान से जंग लड़ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मेरा कोई भी दिन ऐसा गुजरा होगा जब मैंने वहाँ होने वाले किसी वाक़े को सोचा ना हो या उससे मुताल्लिक किसी ख्वाब से ना जागा हूँ। ये मेरी जात का मुस्तकिल हिस्सा है, ये मेरी कहानी का हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो खत्म नहीं हुई है। It's really a full circle thing for me. जनूबी अफगानिस्तान की धूल भरी सड़कों पर फौजी गाड़ी चलाने की बजाय अब वो शिमाली विस्कॉन्सिन की पक्की सड़कों पर किराए का ट्रक चलाते हैं, इस उम्मीद पर कि इस ट्रक में भरी चीजों को जरूरतमंदों तक पहुंचाना उनके अपने जख्म भरने में भी मददगार होगा। They made a conscious choice to help. इन्होंने अपने मुल्क और जिंदगियों की बेहतरी के लिए अमेरिकी फौज की मदद का फैसला किया था। अब हमारी बारी है कि हम उस एहसान का बदला चुकाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। कायल के मुताबिक जब तक अमेरिका आने वाले अफराद को उनकी मदद की जरूरत रहेगी, वो बतौर रजाकार काम जारी रखेंगे। केन फराबो के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में बिजली के निगरां इदारे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त मुल्क के पावर सेक्टर को दरपेश सबसे बड़ा मसला बिजली की ज़्यादा कीमत का है, जिसके कई असबाब हैं। इसकी खबर की तफसील के लिए और जानने के लिए कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत होने के बावजूद बिजली के मसाइल क्यों हैं, आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारा सारा कंटेंट आपको मिलेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। फेसबुक इस हफ्ते खबरों में नुमाया है। कंपनी की एक पुरानी मुलाजिम फ्रांसिस हॉगन की जानिब से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में दायर की गई 8 शिकायत पर सेनेट में सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक कॉमर्स की ज़ैली कमेटी ने भी समाअत का आगाज़ किया है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री और हार्वर्ड से बिजनेस में मास्टर्स डिग्री रखने वाली हॉगन 2019 में फेसबुक में मुलाजमत शुरू करने से पहले 15 साल तक गूगल और दूसरी कंपनियों में भी काम कर चुकी हैं। फ्रांसिस हॉगन एक विसल ब्लोअर के तौर पर सामने आई हैं और उन्होंने दावा किया है कि कंपनी अपनी कोताहियों के बारे में की गई तहकीक छुपा रही है। उनका कहना है कि फेसबुक अपने ऐप्स के मसाइल से आगाह थी, जिसमें गलत मालूमात के मनफी असरात और ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को इंस्टाग्राम के ज़रिए पहुँचने वाले ज़हनी नुकसानात भी शामिल हैं।
فرانسس ہاگن نے کانگریس کے سامنے فیس بک کی اندرونی ریسرچ دستاویزات کے ہزاروں صفحات پیش کیے جنہیں انہوں نے فیس بک کی سیوک انٹیگریٹی یونٹ سے اپنی ملازمت سے رخصت ہونے سے قبل خفیہ طور پر کاپی کیا تھا۔ ارم عباسی اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں، ان سے سینٹ کی کارروائی کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ارم، کل فیس بک کے وسل بلوور کے معاملے میں سینٹ کی کارروائی کے دوران کیا ہوا؟ جی اسد، فرانسس ہاگن جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ سابق اہلکار رہ چکی ہیں، وہ فیس بک میں کام کرتی تھیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فیس بک یہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط معلومات، سیاسی بے چینی اور نفرت پھیلاتا ہے اپنی ایپس کے تھرو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فیس بک یہ منافع کے لیے کرتا ہے، بچوں کی جو ذہنی حالت ہے، بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ اور ان کی ویل بینگ کو اگنور کرتے ہوئے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے فیس بک اپنے منافع کا خیال کرتا ہے، اور وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتا ہے۔ یہ دستاویزات جو انہوں نے سینٹ کو دی، اس سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے یہ دستاویزات شائع کی، جس کے بعد سے فیس بک کو مارک زکربرگ کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اور جیسا کہ فرانسس ہاگن کا دعویٰ ہے کہ فیس بک جو ہے جمہوری اقدار کی ویلیو کو یا ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے منافع کے لیے کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیموکریسیز جو ہیں دنیا بھر میں، چاہے امریکہ ہو یا جہاں فیس بک لوگ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ جمہوری نظام جو ہے اس کو کمزور ہوتا ہے وہ دیکھ رہی ہیں۔ اور یہ جو سینٹ پینل جو کہ اس ہیئرنگ میں بیٹھا تھا، وہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں اسد کہ وہ فیس بک کی اندرونی ریسرچ پہ مبنی ہے، اور اندرونی ریسرچ پہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ 13.5% جو ٹین ایجرز ہیں جو کہ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر سوسائڈ یا خودکشی کے جو خیالات ہیں ان کو بڑھاوا دیا گیا ان ایپس کے تھرو۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ 17% ٹین ایجرز جو ہیں ان کو خوراک کے حوالے سے بیماریاں لاحق ہوئیں اس ایپ کی وجہ سے، اور بیماریوں کی وجہ سے ان کا یہ جو استعمال تھا انسٹاگرام کا وہ بڑھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیموکریٹ سینیٹر ایمی کوبشور کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی، جبکہ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ فیس بک جو ہے بچوں کی صحت پر اپنے منافع کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ارم، اس کے بعد کیس آگے کیسے بڑھتا نظر آتا ہے، خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ قانونی آپشنز کیا بنیں گے اس کے بعد فیس بک کے پاس، یا اس کے ڈیفینیٹلی سینٹ اس کے بعد کس کارروائی کے لیے جا سکتا ہے؟ اسد، فرانسس ہاگن جو کہ فیس بک کی سابق اہلکار رہ چکی ہیں، اور سینیٹرز بھی کانگریس میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فیس بک کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس کے خلاف تحقیقات کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ فیس بک کیسے کام کرتا ہے، اور اس کے کام کرنے کے طریقہ کار میں کیا یہ دانستہ طور پر ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کی صحت، جمہوری نظام اور ان اقدار کو جو کہ دنیا میں یا امریکہ کے لیے اہم ہے ان کو ویلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ساتھ ہی ساتھ فیس بک نے بھی اپنا جواب جو ہے مارک زکربرگ نے اس ہیئرنگ کے بعد فیس بک پر پوسٹ کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بالکل غلط ہے، فرانسس ہاگن جو کہہ رہی ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور فیس بک جو ہے ان تمام اقدار کو جو کہ امریکہ کے لیے اہم ہے ان کو ویلیو کرتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسد، ہیئرنگ کے دوران، اس سماعت کے دوران سینیٹر رچرڈ بلومنتھل نے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ سینٹیمنٹل بات شیئر کی اپنے ہیئرنگ کے دوران سینیٹرز کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا ایک ووٹر ان کے پاس آیا، ان کو ٹیکسٹ میسج بھیجا کہ اس نے کس طرح سے اپنی 15 سال بچی کو انسٹاگرام کے استعمال کی وجہ سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ وہ 14 سال کی تھی، اپنے سے محبت کرتی تھی، لیکن اب اس کو باڈی امیجز یعنی کہ اس کی جو باڈی ہے اس کے یا اس کا جو جسم ہے اس حوالے سے اس کو شک ہے اور وہ تحفظات کا شکار ہے۔ اور اس طرح اس ہیئرنگ سے اب یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فیس بک کو اور مارک زکربرگ سے پوچھا جائے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ کار ہے کیا۔ بہت شکریہ ارم عباسی اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کا۔ کافی پرسنلائز ہیئرنگ بھی رہی، کل جب ہم نے ہیئرنگ کلوز ہوتے ہوئے دیکھی تو کافی حد تک ان چیزوں کا بھی ذکر ہوا جو کہ اس سے پہلے شاید سوشل میڈیا پہ کہیں ڈسکس ہوتی تھی۔ بہت شکریہ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔ آج سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری ہمیں لے کر جا رہی ہیں واشنگٹن میں موجود گریفٹی میوزیم، جہاں فنکاروں کو سپرے پینٹ آرٹ کے مظاہرے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔
वेलकम टू सिंपली अमेरिका। पाकिस्तान में आपने किसी न किसी दीवार पर वॉल चॉकिंग ज़रूर देख रखी होगी। किसी बीमारी का इलाज कराना हो महबूब कदमों में, हर आमिल डॉक्टर हकीम की इत्ला आपको वॉल चॉकिंग के ज़रिए ज़रूर मिल जाती है। इससे कुछ का तो शायद भला हो जाता हो, लेकिन जिनकी प्रॉपर्टी पर ये वॉल चॉकिंग की जाती है उनके लिए नागवारी की वजह ज़रूर बनती होगी। मेरे पीछे दीवार पर भी शायद आपको वॉल चॉकिंग का गुमा हो, लेकिन दरअसल ये वॉल चॉकिंग की ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल यानी ग्राफिटी आर्ट है, जिसे माहिर फनकारों ने बनाया है, और ये वाशिंगटन का ग्राफिटी म्यूज़ियम है। 14th Street Graffiti Museum was founded in 2020. 14th स्ट्रीट पे ग्रेफिटी म्यूजियम सन 2020 में वाशिंगटन के सबसे मशहूर ग्रेफिटी आर्टिस्ट डैन हॉग यानी कूल डिस्को डैन की याद में कायम किया गया था। वाशिंगटन में ग्रेफिटी का नाम लिया जाए तो लोग उन्हीं का नाम पहचानते हैं। 2017 में उनका इंतकाल हुआ तो हम मुस्तकिल बुनियाद पर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहते थे। वाशिंगटन में 19 अगस्त को कूल डिस्को डैन डे मनाया जाता है, तो डबल डाउन किंग्स नामी हमारी टीम इकट्ठे हुई और ये जगह बना डाली। The New York City subway culture, which 1980 के आगाज में हिप हॉप के अलावा न्यूयॉर्क का सबवे कल्चर दुनिया भर में फैला। न्यूयॉर्क में ग्रेफिटी की 15 साला तारीख यानी लिखने का अंदाज, रंगों का चुनाव, अल्फाज का साइज वगैरह वगैरह एक तरह से ग्रेफिटी के लिए इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा रखती है। 1982 के बाद वाइल्ड स्टाइल फिल्म, स्टाइल वॉर्स डॉक्यूमेंट्री और सबवे आर्ट जैसी किताबों की वजह से वाशिंगटन समेत दुनिया भर के बड़े शहरों में ग्रेफिटी आर्ट नजर आने लगा। यहाँ लिक्विनन और फैब 5 फ्रेड ने वाशिंगटन के मरकज में ग्रेफिटी म्यूरल बनाया, जो यहाँ गुज़श्ता 40 साल से की जाने वाली ग्रेफिटी आर्ट के लिए अहम मोड़ था। म्यूजियम के अंदर 30 या ज्यादा साल का तजुर्बा रखने वाले ग्रेफिटी आर्टिस्ट के फनपारों की नुमाइश की जाती है, जबकि आसपास की गलियों में नए उभरते हुए नौजवानों को अपने फन की नुमाइश का मौका फराहम किया जाता है। खामोश से मोहल्ले की बोलती हुई दीवारें, एक दिलचस्प इम्तिजाज। तो कैसा लगा आपको वाशिंगटन का ग्राफिटी म्यूज़ियम? क्या आपने पाकिस्तान में कभी ऐसी स्प्रे पेंटिंग या ग्राफिटी आर्ट देखी है? खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी का हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्रा डार, गीती आरानी, मुर्तजा जहरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के सियाहती मकामात से मुतालिक हमारी सीरीज में आज सैर कीजिए बलोचिस्तान के इलाके हरनाई की, जहां परी चश्मा की कहानियां बहुत मशहूर हैं। कहते हैं यहां कभी परियां नहाया करती थी। यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और प्रोग्राम पर अपने फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।